हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्यारे टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। अब इस मंदिर में जो जो भक्त गए हुए हैं वो तो इसकी महिमा जानते हैं। आज हम जो बिहारी जी का मंदिर है उसके जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं, उसके बारे में जो आश्चर्यजनक बातें हैं जो बाकी की किसी भी मंदिर में हिंदुस्तान में नहीं होती हैं, उनकी चर्चा करेंगे और हम ठाकुर जी के बारे में और जानेंगे। तो मैं इन अमेजिंग फैक्ट्स को, इन आश्चर्यजनक बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। और आज हम एक और छोटा सा प्रयोग करेंगे। फॉर आवर इंग्लिश व्यूअर्स, we will translate each of the amazing fact also in English. So let's start. Are you excited? I am very excited to talk about the God of love, the God we all love, the God who gives us love. So fact number one. Fact number one is that Bihari Ji's temple, the Vrindavan Banke Bihari temple, this temple is the only temple in India which doesn't have a bell. Yes, in Hindi इट इज दैट बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो हिंदुस्तान में एक अकेला ऐसा मंदिर है जिसमें की कोई घंटी नहीं। और इसके पीछे बात ये है कि ठाकुर जी को हरिदास जी बाल स्वरूप में जान कर कि वो सोते हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, इतना इतना प्यार, इतना उनके अंदर वो भाव था कि उस मंदिर में आज तक घंटी नहीं है। In English, so Haridas ji, who brought Bihari ji to us for us to be able to visit that temple and see him there, he always thought that he's a small child. Thakur ji is a small child, and if there will be a bell ringing again and again like it does in other temples, then he will get disturbed. So not to disturb him, there is no bell in the temple of Shri Banke Bihari ji in Vrindavan. Now, fact number two. Fact number two is that in Banke Bihari temple, there is no Mangala Aarti. बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की प्रथा नहीं है और इसके पीछे का रीजन ये है कि मान्यता के अनुसार ठाकुर जी हर रात को निधिवन में रास करने जाते हैं और उनको आते आते सुबह हो जाती है। वो 4 बजे के करीब जब हिंदू संस्कार के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब 4 बजते हैं तब सुबह मानी जाती है, तो वो 4 बजे से थोड़ी सी देर पहले आकर मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में वापस आ जाते हैं ताकि उनकी नींद में खलल ना पड़े। इसीलिए जो मंगला आरती है वो कभी नहीं की जाती। इसके पीछे एक स्टोरी भी है कि कैसे पता चला था कि वे रोज वहां जाते हैं और सुबह सुबह आते हैं। वो स्टोरी हम जो अपने एपिसोड्स कर रहे हैं उनमें जरूर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे के जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं उनको भी सुनिए और आनंद लीजिए। फैक्ट नंबर 2 को इंग्लिश में थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए बता दें। सो why this temple doesn't have the early morning prayers? Because it is said that Bihari ji goes to Nidhivan every night and he comes back before the dawn, and that is when he goes to sleep. So if there is Mangala Aarti happening, then he'll not be getting his sleep. And there's a big story, a very, very, very nice story behind this all, which we'll cover in our upcoming episodes. If you want to read that story, you can find it online, and if you like to listen to that story, we'll definitely make that in one of our episodes. So please subscribe to us to listen to more interesting facts. Continuing from here to the next interesting fact number 3. Fact number 3 is that it is the only temple in India which has the Parda Pratha. What is Parda Pratha for Banke Bihari Ji? The Banke Bihari Ji Vigrah, the idol of Banke Bihari Ji, where it is kept, there is a parda, a curtain, which the priest comes and he does every 2 minutes. And the reason behind that is said that Bihari Ji
loves his devotees so much, and so is for his devotees as well, that once there was a devotee, a queen, who came and she looked at him with so much of devotion that Bihari Ji ran away with her. And the next day, when the priest was taking care of Bihari Ji and doing the normal prayers, he got to know that it is only a Vigre, and the Pran and the actual Thakur is no more in the Vigre. And that is when, with his Gyan, he asked, "Where are you, Thakur?" And he said that I am in Rajasthan. So, this is another story which we'll cover in another episode. For our Hindi viewers, ठाकुर जी के जो मंदिर है उसमें पर्दा प्रथा है। पर्दा किया जाता है हर 2 मिनट में। पर्दा ना करो बिहारी। तो ठाकुर जी का जो पर्दा किया जाता है वो कौन करते हैं? हमारे जो पुजारी जी हैं। हर 2 मिनट में पर्दा करके वो सोहनी सांवली सूरत का नजारा हमसे छीन लेते हैं। और कोई भी भक्त ठाकुर जी के दर्शन पाने के बाद ये बता ही नहीं पाता कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना हुआ था। उसकी वजह है उनके नयन। उनके नयन कहे जाते हैं कि इतने अट्रैक्टिव हैं कि आप सब भूल जाते हैं। इसीलिए पर्दा की प्रथा है, क्योंकि मान्यता ये है कि ठाकुर जी जब बिना पर्दे के ये मंदिर होता था, तो एक बार एक रानी, राजस्थान की रानी आई थी, और वो बहुत बड़ी भक्त थी ठाकुर जी की, और उन्होंने इतने निष्ठा भाव से ठाकुर जी की तरफ देखा कि ठाकुर जी उन्हीं के साथ चल दिए। अगले दिन जब हमारे पुजारी जी, हमारे गोसाई जी सेवा करने आए, तो उनको ये महसूस हुआ कि आज ये मूर्ति केवल मूर्ति ही रह गई है, इसमें प्राण बाकी नहीं है। तो उन्होंने अपने ज्ञान से ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर कहाँ हो तुम? तब ठाकुर जी ने बताया कि मैं तो यहाँ अपने भक्त के पास हूँ राजस्थान में। और तब गोसाई जी वहां पर गए अपनी मंडली के साथ, और बहुत आग्रह करने पर वो लेकर आए। इसके पीछे जो रानी की कहानी है, फिर उन्होंने बिल्कुल वृंदावन में बांके बिहारी जैसा ही मंदिर अपने राजस्थान में भी बनवाया था, वो स्टोरी हम अपने किसी और एपिसोड में जरूर कवर करेंगे। तो इसीलिए उस दिन के बाद से जो गोसाई हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि ये ठाकुर तो बड़ा ही चंचल है, ये तो भाग जाता है, तो ये भाग ना जाए अपने किसी भक्त के साथ, इसीलिए पर्दा की प्रथा चलाई। इसीलिए ठाकुर जी के मंदिर में पर्दा। मूविंग ऑन टू फैक्ट नंबर 4। सो द फैक्ट नंबर 4 इज, जो ठाकुर जी का विग्रह, ठाकुर जी का विग्रह किसी ने बनाया नहीं है। अष्ट धातु का है, कैसा है, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो विग्रह जो है हरिदास जी ने अपनी पूजा, अपनी अर्चना से प्रकट किया था। और वह विग्रह जो है वह राधा जी और कृष्ण जी का युगल स्वरूप का एक ही विग्रह। उस विग्रह में जो अट्रैक्टिवनेस है वो कहते हैं राधा शक्ति, और जो उनका स्वयं का पूरी मूर्त का दर्शन है वह ठाकुर शक्ति। तो इट इज the idol in the temple of Banke Bihari Lal. It is not a built idol. It is not of stone, it is not of gold, because it is not built, and nobody knows what that idol is made of. That is because Sri Haridas Ji did a lot of prayers, and he had so much of love for Thakur Ji that Thakur Ji came and met him. And when he came, he said, "Now you, what do you want?" He said, "I want to pray you more. You sit here, you listen to my Gan. I want you to be here." And then Thakur Ji said that, "Okay, I will be with you." And it was Radha Ji and Krishna Ji both. Then Haridas Ji said, "How would I do Shri Ji's seva, Radha Ji's seva, because she's a female and I am a male." And that is why the idol became one. Both of them became in one idol, and the eyes of the idol, which are the most attractive part of that idol, are said to be the coming from the Radha Shakti. And the idol itself is said to be Krishna's. And there is a story which is about how Haridas Ji brought this temple, or brought this idol in his lap, how Thakur Ji gave him that
Seva, that all we will definitely cover in an other episode of ours. And do you also know, maybe we can say this is the fact number next, which is I think 5. Now I'm getting excited and I forgot the number. So let's forget the numbers. So fact number 5 or 6 maybe. So is that this idol, it never for the first time was in the place where you see it today. So the idol which you see today at the Banke Bihari temple Vigra was never at that place. The temple originally, when Haridas ji was praying to God and Lord gave him his own appearance in the form of this idol, was for the first time in Nidhivan. And for years he stayed there with Haridas ji and his devotees doing the seva of Thakur ji. Then the temple which today is in the form was made, and initially even in this temple, the Banke Bihari Mandir temple, the Vigre was not in the place where it is today. It was in the center of the temple, and every season, so like in nowadays in Tej or in Holi, when Thakurji comes out and he plays, that is because he earlier used to be in the center with all his Sakhis, Ashta Sakhis surrounded by him, and he would play with him there. But then because the devotion increased and people started coming from all the places, and then the temple was rebuilt again to the form which it is current, and the Vigre was made, Vigre Garbhagriha was made where Thakurji resides today, and you see him today behind the purdah. Now the fact number 6, and I'm sure 99% of you would not know this fact. Sri Haridas ji, who is said to be the person who brought Thakurji to us. Sri Haridas ji is also known to be the one of the 8 Sakhis, Ashta Sakhis of Thakurji. Do you know which Sakhi he is? If you know, comment in the section. But I'll also cover it. हिंदी में हरिदास जी महाराज जो हैं, जिनकी वजह से आज हम ठाकुर जी के दर्शन कर पाते हैं, वे भी ठाकुर जी की अष्ट सखियों में से एक सखी है। क्या आप जानते हैं वे कौन सी सखी है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ठाकुर जी की विशेष सखी है, उनकी अष्ट सखियों में से विशाखा और ललिता 2 विशेष सखियां हैं, और इन्हीं में से एक सखी जो है वो हमारे हरिदास जी में, और वो है ललिता सखी। तो हरिदास जी जो है वो ललिता सखी का ही स्वरूप। हरिदास जी महाराज इज स्वरूप ऑफ ललिता सखी। Now moving on to the next amazing fact, which is fact number 7. So fact number 7 is that wherever you see Thakurji, there's so many temples of Thakurji, Shri Krishna, you will see him always in a Jugal Jodi Sarkar, or there may be temples where he is alone as well, but there is one thing which is never away from him. Can you guess what is it? He's always having that. And he is known to be the best player of it. Yes, you guessed it right. It's the flute. The flute of Thakurji is said to be incomplete without it. It's said that everybody, even Radhaji once was jealous of this flute, because he would always carry the flute on his other, and then he will play that flute with the music which would enchant everyone around. What about the villagers, the gopis, the gops, the cows, the peacocks? Everybody would feel enchanted when he'll start playing. That was the magic he would create. So the flute which you see with Thakurji in every of his idols of his image, that is not there in the Banke Bihari Vrindavan temple. And the reason behind is that as per the belief of Haridas ji, he is a small child. If he's always be carrying a flute, then he will get tired. So not to let him get tired, the flute is not with him. But
once in the entire year he picks that flute and you see him with the flute. Do you know what is that day? If you know, then comment in the section below. So, हमारे ठाकुर जी जो हैं वह बांके बिहारी वृंदावन में जो ठाकुर जी का विग्रह है वो अकेला ऐसा विग्रह है जिसमें ठाकुर जी के पास उनकी मनमोहिनी बांसुरी नहीं है। वही बांसुरी जिसको सुनकर सखियां अपना सुध-बुध खो देती थी और सब काम छोड़कर ठाकुर के ही प्रेम में मगन हो जाती थी और उल्टे सीधे काम भी करती थी। क्या तो मनुष्य और क्या तो ग्वाल बाल और क्या तो गैया और क्या तो पंछी सभी मग्न हो जाते थे। वो मुरली ठाकुर जी के बांके बिहारी टेम्पल में जो विग्रह है उसमें ठाकुर जी धारण नहीं करते। और इसके पीछे जो मान्यता है वो ये है कि हरिदास जी बाल रूप में ठाकुर जी को प्रेम से ये सोचते थे कि मेरा लाला, मेरा बाल गोपाल अगर हर समय मुरली थामेगा तो वह थक जाए, इसीलिए वे मुरली उनको नहीं धारण कराई जाती। पर साल में केवल एक बार ऐसा दिन आता है जब ठाकुर जी मुरली धारण करते हैं। अगर आप जानते हैं वह दिन कौन सा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वो दिन साल में एक बार होता है जब ठाकुर जी मुरली धारण करते हैं और वो दिन होता है शरद पूर्णिमा का दिन। उस दिन ठाकुर जी श्वेत वस्त्रों में अपना अवतार दिखाते हैं अपने भक्तों को और मुरली भी धारण करते हैं। जी हाँ, अगर आप वो मनमोहन रूप ठाकुर का देखना चाहते हैं जब वो मुरली धारण करता है तब आप ठाकुर जी से मिलने कब जाइए? शरद पूर्णिमा पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक एंजॉय कर रहे हैं तो अभी भी बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैंने कवर ही नहीं। मुझे तो आज बहुत आनंद आ रहा है, आपको आ रहा है तो जरूर बताइएगा। अब हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं और मैं सच में भूल चुकी हूँ कि अब ये नंबर कौन सा है। तो ठाकुर जी का फैक्ट नंबर 8 है कि ठाकुर जी का नाम बांके बिहारी, ये नाम क्यों है ठाकुर जी का? और कहीं तो ऐसा नाम नहीं है। और उनका दूसरा नाम ठाकुर भी है। ठाकुर तो इसलिए है कि ये माना जाता है कि वो सारे संसार का मालिक है। पर बांका, बांके का मतलब होता है जो 3 जगह से टेढ़ा। टेढ़े तो है ही है हमारे ठाकुर जी, 3 तरफ से टेढ़े हैं, इसीलिए बांका। और बिहारी का मतलब जो खुद भी हमेशा आनंद में रहता हो और सबको आनंदित करता हो, इसीलिए उनका नाम है बांके बिहारी। तो इसी बात पे आप सब मेरे साथ क्या बोलेंगे? बोल बांके बिहारी लाल की जय। So for our English viewers, the name that Thakurji gets is Banke Bihari. Banke means a person or somebody who is bent from 3 sides, and the idol which is in the vigrah of Thakurji is bent from 3 sides. That is where he gets the name Banke. And Bihari means somebody who gives a lot of richness, a lot of happiness to himself and to everybody always. That is the reason that he has the name Banke Bihari. So our next amazing fact about Thakur Shri Banke Bihari Lal. The next fact about Thakurji is that every night after the final puja, the door is closed from outside and nobody is allowed to enter the Banke Bihari temple. And there is a watchman who is standing in the front of the gate. Every night, Bihari ji at the night goes to Nidhiban for his ras. And he does the ras with his sakhis and everybody there. It's said that every tree in Nidhivan is a sakhi. And every night, all the bushes and all the trees in the Nidhivan, they transform into sakhis
and then they do the Nitya Ras with Shri Thakur Banke Bihari Ji. We'll cover the entire story of Nidhivan in an other episode. हिंदी के व्यूअर्स के लिए हमारा नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट है कि ठाकुर जी का विग्रह, ठाकुर जी का जो मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, वह शाम को जब आरती के बाद में रात को 9 बजे 9:30 बजे जब बंद कर दिया जाता है तो वहां पर एक वॉचमैन को खड़ा दिया जाता है कि कोई भी इस मंदिर के अंदर ना आ सके। और उसके बाद जब सब सो जाते हैं तब हर रोज ठाकुर जी कहाँ जाते हैं? निधि वन। और निधि वन में जाकर अपनी सखियों के संग करते हैं रास, वही रास जिसमें हमारे भोले बाबा भी आते हैं और सभी देवी देवता भी आते हैं। निधि वन की अपनी बहुत मान्यताएं हैं और उसको हम एक अलग एपिसोड में जरूर कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा बताती हूँ कि निधि वन की जो मेन बात है कि ठाकुर जी रोज वहां जाते हैं, देवी और देवता वहां रास रचाने और ठाकुर जी का रास देखने आते हैं। और जितनी भी आपको वहां पे पेड़ और पौधे नजर आते हैं, पेड़ और पौधे नहीं है, वो सखियां हैं। और हर रात को वो सखियों में बदल जाते हैं, अपने असली रूप में आ जाते हैं और ठाकुर जी के साथ नित्य प्रति रास करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 10। फैक्ट नंबर 10 है कि ठाकुर जी के चरण दर्शन और ठाकुर जी के पूर्ण अंग के दर्शन, स्वरूप के दर्शन होते हैं। साल में सिर्फ एक बार ऐसा दिन आता है जब आप ठाकुर जी के चरण दर्शन कर सकते हैं, सुबह के समय, और शाम के समय उनके संपूर्ण अंगों के दर्शन कर सकते हैं, पूर्ण दर्शन कर सकते हैं। और वो दिन होता है कौन सा? पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। वो दिन होता है अक्षय तृतीया का। जी हाँ, ठाकुर जी सुबह के दिन अपने सब भक्तों को अपने चरण दर्शन दिखाकर कृतार्थ करते हैं इस दिन। और संध्या के समय आप ठाकुर जी के पूर्ण अंग के दर्शन कर सकते हैं, स्वतः दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी के। तो हमने ठाकुर जी के वृंदावन बांके बिहारी लाल टेम्पल के आपके साथ 10 अमेजिंग फैक्ट्स आज बात की, आपको बताए। हो सकता है कुछ आपको पहले से पता हो सकता है कुछ फैक्ट्स मुझे ना पता हो। अगर आपको बिहारी जी का कोई भी ऐसा फैक्ट पता है तो आप हमारे साथ वो फैक्ट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।